Good evening, guys. Welcome back to another episode of Brain Knock. Sorry, मैं 6 मिनट लेट हो गया हूँ एज पर द स्केड्यूल टाइम। तो ये कि आज का जो हमने मौजू चूज़ किया है वो पेरेंटिंग के ऊपर है, जो कि जनाब राज साहब उसके ऊपर तबसरा करेंगे। और थोड़े करंट अफेयर्स है जो मैंने सोचा कि एक नया इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, कि आई विल बी स्पीकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट द करंट अफेयर्स, उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करूँगा। और दूसरा ये कि फिर जब रात जाते हैं दूसरे दोस्त जो संगीत में दिलचस्पी रखते हैं तो वो आकर अपना कुछ सॉन्ग्स ही वो पेश करेंगे। तो इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स ऑल टुगेदर। तो मैंने यहाँ पर लिंक वैसे शेयर कर दिया है, और लेट मी सी इफ आई कैन। Alright, just see if I can pin it. I'll go in it and then I'll pin it. Okay, this is done. All right, so the first thing that I would like to discuss is about current affairs. As I said, I'm going to be discussing, and then मैं उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करूंगा अगर ज़रूरत महसूस पेश आएगी। तो ये कि सबसे पहले आते हैं हेडलाइंस के ऊपर, इंटरनेशनल न्यूज़, which starts with Pakistan. So the massive losses from the catastrophic monsoon rains and floods in Pakistan, the war in Ukraine, and other factors may force it to slash its GDP growth rate from financial year 2022 to 2023 from 5% to 3%, according to the media reports on Saturday. Chairman of the National Flood Response and Coordination Center, NFRCC, Major General Zafar Iqbal, during the joint briefing for the Prime Minister Shehbaz Sharif and UN Secretary General Antonio Guterres, said that at least one third of the Pakistan was inundated, while the overall damages would amount to over 30 billion. तो ये कि अभी यहाँ पर तूफान के जो इफेक्ट्स थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये कि आफ्टर मार्थ जो होता है यूजुअली, तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो लॉसेस हुए हैं, दैट अमाउंट्स अबाउट 30 बिलियन। लेकिन जीडीपी का 5% से 3% गिर जाना, वो एक बड़ा फैक्टर है। आई थिंक इट्स गोइंग टू have a major effect on the economy. So there is still the hope that they get a lot of aid as requested. और फिर ये कि टाइम तो लग जाता है ये सारे जो लॉसेस हैं उसको रिकवर करने के लिए, बट मुश्किल हालात अभी हैं, पाकिस्तान के सर पर मंडरा रहे हैं। दूसरी बड़ी न्यूज़ है किंग क्वीन के पास पास ऑन हो जाने के बाद में जो जो इनका सेरेमनी हुई है, चार्ल्स जो है ना वो अभी किंग बन गए, पहले वो प्रिंस थे। तो ये कि द किंग चार्ल्स नेम्स विलियम एंड केट द प्रिंस एंड द प्रिंसेस ऑफ वेल्स। तो ऑब्वियसली ये जो पहले तो ये चार्ल्स प्रिंस थे, अब ये कि उनकी जो औलाद है उसके अंदर विलियम जो बड़ा बेटा है और उनकी बीवी वो प्रिंस और प्रिंसेस का खिताब उनको मिल गया है। तो Queen Elizabeth was a life well lived. Her son and successor Charles said on September 9th in his maiden televised address as king to a grieving nation, as he vowed to carry on his darling mom's lifelong service to UK and beyond. Sitting next to a photograph of his mother and wearing a black suit and tie, King Charles III said the affection, admiration, and respect the Queen inspired became the hallmark of her reign. He thanked his darling mama for the love, affection, guidance, and example, as he expressed gratitude to the country's longest serving monarch over for her 70 years of service, and spoke of the profound grief that had gripped the royal family and the nation with her passing away. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today, said 73-year-old Charles. I pay, oh, Charles be 73 years ke ho gaye. I pay tribute to my mother's memory and I honor her life of service. I know that her death brings sadness to so many, and I share that sense of loss beyond measures with you all. He said in an indication of the estimated date of Queen's funeral, which is yet to be confirmed. The king noted, "In a little over a week's time, we will come together as a nation, as Commonwealth, and indeed a global community."
to lay my beloved mother to rest. In our sorrow, let us remember and draw strength from the light of her example. In the historic address, the new king pledged to serve the United Kingdom, its realms, and the Commonwealth with loyalty and respect. As the Queen herself did with such unwavering devotion, I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles of the heart of our nation, he said. And wherever you may live in the United Kingdom or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love as I have throughout my life, he noted. Reflection upon how his life is set to change from uh, being the heir apparent to the monarch. King Charles III admitted it would no longer be possible for him to devote much of his time and energies to the charities and issues he cares deeply about. So obviously जब ये प्रिंस थे तो बहुत सारे काम करते थे जैसे charities देना and all that वो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो king हैं. Obviously when the queen was looking after major issues, he was looking after the benevolent causes. But I know this important work will go on in the trusted hands of others, he said, adding that he would be counting on the help of his darling wife, Camilla, in his new role. King Charles III also used his address to create his son and heir, Prince William, and the Prince of Wales, and also Duke of Cornwall, the titles he formerly held. He said, "Today I'm proud to create him Prince of Wales, Tuasong Camru, the country whose title I have been so greatly privileged to bear during so much of my life and duty." With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our nation's conversations, helping to bring the marginal to the center ground where vital help can be given. The King also expressed love for his younger son Harry and his wife Meghan as they continue to build their lives overseas, which would be seen as conciliatory move amid reports of tensions within royal circles. So the couple stepped back from the front line रॉयल्टी. तो ये इनके जो दूसरे बेटे थे जो यूएस में अपनी बीवी के बातों में आके चले गए और वो टाइटल तो इनके लिए भी इन्होंने एड्रेस किया अपने ऑब्वियसली छोटा बेटा है. The broadcast which followed a minute silence at St. Paul's Cathedral was recorded in the Blue Drawing Room of Buckingham Palace this afternoon. King Charles III and his wife Queen Consort Camilla greeted large crowds gathered outside the Buckingham Palace in London before holding his first audience with Prime Minister Liz Truss. King Charles III, who ascended to the throne on the death of his mother, Queen Elizabeth II, on September 8, returned from Balmoral Castle in Scotland and was met with emotional crowds to express their condolences. Amid applause and cheers and even a hug and kiss from the members of the public, and the royal couple made their way into their new home at Buckingham Palace. Charles will be formally proclaimed as king at the Session Council 10 a.m. local time on September 10th in States Apartments St. James Palace, Buckingham Palace, he has said. But वो तो आज हो गया सुबह में तो खैर it will mark the first time in history that the ceremony will be televised. However, he has begun his royal duties already and would have discussed the plans for the Queen's funeral with Prime Minister Truss during their first in-person audience at Buckingham Palace. Miss Truss, who was appointed by the late Queen on Tuesday, spent approximately half an hour with King Charles III. The meeting came just before his first televised address as monarch. तो ये पहली दूसरी न्यूज़ थी with regards to the king, and I can go over a few of the other things. Let me first of all talk to Raj and see how he's doing. Raj, how are you? Very well. How you doing? Good, thank you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you? I can hear you. That's good. How you been? I'm all right. तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था जो न्यूज़ में है important issues. Really? Such as what had happened in Pakistan, the flood, the aftermath of the flood, और ये जो Queen का जो हुआ हुआ है. So it's a big loss to the entire country, to the entire nation, world, I must admit. Queen का जो role रहा है. 70 years she was in power, and within 70 years a lot of things have happened in the world. If you are I know that you want to discuss about the parenting. If you got few minutes, what I can do is मैं ये news read कर देता हूँ
और या नहीं तो फिर if you want to go ahead now you can do it. मैं बाद में कर सकता हूँ. It's up to you. Now you can continue on with the news. Okay, it's not too long. It's just okay. So another one is New York governor declares disaster emergency after polio found in wastewater. तो ये पोलियो जो था वो मैं तो समझा था कि सारा completely eradicate हो गया है world से, लेकिन unfortunately I can still find some cases और जिसके लिए वो उन्होंने emergency declare कर दिया है. तो ये कि पोलियो जो था ना वो prominent था, लेकिन इंडिया में तो completely eradicate हो गया था. लेकिन ये कि जब लोग कहते हैं कि कोविड चला जाएगा, कोविड will never go, you will have to live with it. And polio, the recent outbreak of polio is another fine example to advise you that एक जो pandemic है वो रहेगा हमेशा. It's just that people have to get used to it, and then hopefully their immune system also gets used to it. So the executive order comes more than a month after an adult in Rockland County, north of New York City, was diagnosed with disease in July. New York Governor Kathy Hochul declares a state disaster emergency on Friday after samples of the polio virus was discovered in wastewater in three counties outside of New York City. Ms. Hochul's executive order came more than a month after an adult in Rockland County, north of New York City, was diagnosed with the disease in July. It was the first confirmed case of polio in the United States in nearly a decade. The declaration would expand the number of people authorized to administer polio vaccines and other steps to accelerate inoculation rates. The state of emergency will stay in effect until October 9. The polio virus was present in wastewater samples collected as early as April, Ms. Hochul's executive order said. Virus was detected in wastewater samples taken in Orange, Rockland, and Sutherland counties every month since April, indicating the virus was present in the state before the Rockland County case was found in July. After the disease was detected, the New York officials began urging unvaccinated residents to get polio vaccinations, while people of all ages are under threat. The virus primarily affects children aged 3 and younger. Now, polio can cause irreversible paralysis in some cases, but it can be prevented by vaccine first made available in 1955. There is no known cure. 3 injections of the vaccine provide nearly 100% immunity. So as I said, you cannot, once you are affected by polio, there is no cure for it. Like any other problem such as COVID, there is no cure for it. But however, the good news with polio is that you can prevent it 100% if you were to take, अगर आप 3 injections लेते हैं अगर आप, तो then you will be immune from it. So पहले लेना चाहिए पोलियो. बहुत सारे लोगों को हमने देखा वो लंगड़े फंगड़े ऐसे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पोलियो. पहले तो बहुत था वैसे, लेकिन फिर ये वैक्सीनेशन का जो निकला था, लेकिन ये वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा लोगों ने अपोज किया था उन दिनों, जैसे अभी कोविड के वैक्सीनेशन को कर रहे हैं. बड़ा स्ट्रगल था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट हेल्प. एंड वी हैव सीन, हम लोग देखें कि लिटरली किस तरह से पोलियो जो है ना वो इरेडिकेट हुआ था अराउंड द वर्ल्ड. तो फिर ये कि दूसरी जो बातें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि in India, court allows animal rights group to intervene and said the bench would hear them in detail before passing orders. ये एक बड़ा मसला है. मैं अक्सर ये देखता था कि जो इंडिया के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो गलियों कूचों में 12-20 कुत्ते एक साथ रात के टाइम पर होते हैं. कुछ एरियाज तो ऐसे होते हैं वहाँ पर बच्चे जाने के लिए डरते हैं क्योंकि ये सारे कुत्ते होते हैं. पहले होता था वैसे कि डॉग्स कैचिंग वैन्स आते थे जो इनको पकड़ कर लेकर जाते थे, लेकिन ये कि मैं लिटरली देखा मैंने कि ये डॉग्स एक बहुत बड़ा मसला बन गए हैं. कितने केसेस आते हैं जहाँ पर बच्चों को इन्होंने फाड़ दिया है. छोटे बच्चे बिल्कुल 1 साल के अंदर उनको 2 कुत्तों ने अपनी लड़ाई में लिटरली फाड़ दिया था. इससे बहुत केसेस आते हैं. तो फिर इसके ऊपर ये कि एक न्यूज़ है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ. The Supreme Court on September 9th said its efforts will to strike a balance between the human act of feeding strays and protecting innocent people from stray dogs attacks. I'm also a dog lover, and there are many other dog lovers here. We have to accept that there is a problem. Dogs may become ferocious due to lack of food, and they may get an infection. Justice Sanjay Khanna, hearing the bench, observed orally. The court scheduled the hearing on September 28th. The danger of stray dogs attacks was recently brought back into the Pex Court because focused by advocate V.K. Biju, who highlighted the death of a 12-year-old victim recently in Kerala. The bench also asked the Justice Sri Jagan Commission formed by the Supreme Court to submit a report. The commission was constituted in 2016 to inquire into complaints about dog attacks and the distribution of compensation to victims in Kerala.
Senior advocate V. Giddy, appearing for the state, referred to a 2015 judgment of the Kerala High Court to cull the stray dogs populations in accordance with the local body laws. The court allowed animal rights groups to intervene and said the bench would hear them in detail before passing orders on the issue. तो ये एक बड़ा सा इशू है जिसके ऊपर डेफिनेटली लोगों को देखना चाहिए. ऑब्वियसली डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स, दे वुड हैव अ प्रॉब्लम. एक बार ऐसे ही हुआ था कि भाई स्टेट ने डिसीजन लिया था आंध्र प्रदेश के ये सारे जो डॉग्स हैं, कैनाइंस, दे हैड बिकम अ प्रॉब्लम. बहुत सारे केसेस आ रहे थे, तो मासिव इनका जो है ना किल करके एक बड़ा सा वो बना दिया था, ठिगार बना दिया था. तो ये कि मेनका गांधी को बड़ा वो हुआ था, वो वहाँ से भाग के आ गई थी कि भाई ये वो अपेरेंटली शी इज एनिमल लवर. Anyways, so now with a dig, Congress accuses BJP of spreading mischief over Rahul Gandhi's conversation with Christian priest. ये एक दूसरे के ऊपर अटैक्स होते होता है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, ये पॉलिटिक का हिस्सा है. लेकिन आई थॉट दिस न्यूज इज बिट इंटरेस्टिंग विद ऑल देयर इज गोइंग ऑन, ये जो सोशल मीडिया पर होता है. तो George Poneyya, who met Rahul Gandhi, says Jesus is the only God unlike Shakti, said BJP spokesperson Shehzad Poonawalla. The Congress on September 10th accused the BJP of spreading mischiefs and alleged that the ruling party has turned more desperate ever since the successful launch of the Bharat Jodo Yatra. The Congress was objecting to a tweet put out by the BJP leader Rahul Gandhi's conversation with a Christian priest about Jesus being God. AICC General Secretary Communications Jairam Ramesh said BJP's Hate Factory is sharing tweets about Mr. Gandhi which has no relationship to the audio. An atrocious tweet from the BJP Hate Factory is doing the rounds. It bears no relationship whatsoever to what is recorded in the audio. This is typical BJP mischief that has become more desperate after the successful launch of the Bharat Jodo Yatra, which is evoking such a huge response, Mr. Ramesh tweeted. People who were responsible for the killing of Mahatma Gandhi and the murders of people like Narendra Dhobalkar, Govind Hansre, M.M. Kalburgi, and Gauri Lankesh are raising questions. What a morbid joke. Such attempts to damage the spirit of Bharat Jodo Yatra will fail miserably, he said in another tweet. BJP spokesperson Shehzad Poonawalla, while sharing the video of Mr. Gandhi with a priest, said George Poneyya, who met Rahul Gandhi, says Jesus is the only God unlike Shakti and other gods. This man was arrested for his Hindu hatred earlier. He also said, I wear shoes because impurities of Bharat Mata should not contaminate us. Bharat Jodo with Bharat Todo icons, Mr. Poonawalla tweeted. Mr. Gandhi is undertaking 3,570 kilometers Bharat Jodo Yatra to connect with people across the country while seeking to strengthen the Congress party, which has suffered successive electoral defeats in the last few years. तो ये कि ये जाते हैं भारत यात्रा के ऊपर ना, उधर पहले भी किया हुआ इन्होंने, लेकिन पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट होगा लिटरल सेंसस के अंदर. बट अगेन ये पॉलिटिकल एक एजेंडा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा पर गए हैं, तो दूसरे लोग जो हैं वो उसके ऊपर कमेंट्स पास कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू मेक इट a big deal, which is just an ongoing tussle between the governments. वालेकुम अस्सलाम कॉमरेड साहब, कैसे हैं आप सर? अगर आप फ्री हो तो ऊपर आ जाओ. और तो ठीक है, ये थे हमारी न्यूज़ बुलेटिन जो हम लोग इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल सम एस्पेक्ट्स और करंट अफेयर्स के बारे में मैं बात कर रहा था. तो ठीक है राज साहब, आप अपना जो आज का हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है पेरेंटिंग के बारे में, उस बारे में आपने कुछ बोलना है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आज आप कैमरे से ज्वाइन नहीं हो पाएंगे? I'm driving Nani on a freeway. ओके, नो वरीज, ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसी बात करें. सर मैं म्यूट पर जा रहा हूँ. जी जी. So parenting के ऊपर मैं बात नहीं, I just wanted to थोड़े टॉपिक्स पे टच करना चाह रहा था मैं कि you know how important parenting is एक आदमी के ऊपर, आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मैं कि that you know क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं. मैं सोच रहा था कि you know from the dawn of time, yeah, from the time monarchy existed, men did not really spend, आदमी ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ, स्पेशली मेल्स के साथ ज्यादा स्पेंड नहीं करते थे, और यू नो उनकी पूरी परवरिश माएँ करती थी. मगर आदमियों के जो आइडल थे वो हर वक्त अपने फादर ही थे. दे वांटेड टू बी लाइक देयर फादर,
मगर दे वर ब्रॉट अप बाय देयर मदर। तो आजकल के जमाने में विच इज आई डोंट नो गुड थिंग या बैड थिंग, फादर्स भी अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और पिछले जमाने की ये बात है कि दे वर हार्ड मैन। डू यू थिंक के द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फादर्स बच्चों के परवरिश में, यू थिंक इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते होंगे या पॉजिटिव इफेक्ट्स? शारिक, आप जरा फिर से सवाल अपना पूछें। मैं कह रहा था कि इन्वॉल्वमेंट अभी जो फादर्स का जो है बच्चों की परवरिश में ज्यादा बढ़ गया है, दे स्पेंडिंग टाइम। तो डू यू थिंक इसका इफेक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? उनके बच्चे आई डोंट थिंक दे विल, बिकॉज पहले की जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पहले जमाने में यूजुअली मॉम्स जो थी वो बड़े करती थी बच्चों को, और फादर यू यूजुअली इन वॉर या घर से बाहर। मगर आजकल आई थिंक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम पेरेंट्स दे रहे हैं दोनों। डू यू थिंक इसका इफेक्ट बच्चों पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? आई थिंक इट्स 100% इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि ये कि पहले होता ये था कि बहुत सारे माशरे में, अगर आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो थे ना वो लिटरली उनको माएँ देखती थी। फिर वो बच्चे भी ज़्यादा होते थे और बाप को जो है ना वो काम के दौरान सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था, क्योंकि मोस्टली उनके ज़्यादा बच्चे होते थे तो दे हैव टू वर्क हार्ड। तो एक सिस्टम, एक चीज़ आ गई थी कि भाई ये कि पेरेंट्स के अंदर मदर वाज लुकिंग आफ्टर, एट द सेम टाइम मदर को बहुत दूसरे काम भी होते। तो लेकिन पहले ऐसे होता था कि बहुत सारे रिलेटिव्स होते थे, खाला आ गई, फूफी आ गई, चाची आ गई, ऐसे वैसे, तो वो लोग कुछ हेल्प कर देते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे न्यूक्लियर होती गई फैमिलीज, तो वो चीज़ भी कम होती गई थी। तो अभी ये कि बहुत सारे केसेस के अंदर बिकॉज द हस्बैंड कैरिड अलोंग, वो वही जो ट्रेडिशन था वो लेकर आगे चल रहे थे, तो उससे तो बात होने वाली नहीं थी। विद कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड अभी आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको घर का खर्चा चलाना है तो फिर मियाँ बीवी दोनों को काम करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। तो उस सूरत हाल के अंदर अगर फिर वही अगर एटीट्यूड है ना, सो दैट वो प्रॉब्लम बढ़ के डिवोर्सेस में, इसमें उसमें शुरू हो जाता है, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा। हाँ, लेकिन ये कि एक बच्चे को बहुत माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है उसकी परवरिश के अंदर। सिर्फ माँ का प्यार मिल रहा है, बाप से उनको कोई अगर वो नहीं है, मतलब साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं ऑल दैट, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये कि बाप जो बच्चे को लेकर जाकर थोड़ी चीज़ें सिखाता है उसके साथ टाइम, तो वो बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरह से डेवलप होता है। तो आई थिंक इट्स रियली अ गुड पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट बोथ जो पेरेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होना बच्चों के परवरिश में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ये भी एक चीज है कि जब स्पेशली आफ्टर द बॉय इज एबल टू कॉम्प्रहेंड थिंग्स, जब फादर इज अवे फ्रॉम होम ना, तो मैं बच्चे की तरफ से बात कर रहा हूँ, लड़के की तरफ से, द बॉय बिकम्स द मैन ऑफ द हाउस। तो उसमें लीड लेना, लीडरशिप चीज लेना, और आई थिंक थोड़ा सा एग्रेसिव होना, नॉट नॉट इन अ बैड वे, एग्रेशन थोड़ा सा, और डिसीजन मेकिंग होना, ये सब स्किल्स आई थिंक बच्चा जल्दी डेवलप कर लेता था। तो when जब फादर है ही वहां पर, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी से यू गेट शन बाय काइंड ऑफ ये सब जो एक्लेट्स हैं जो मिलते हैं व्हेन यू आर द मैन ऑफ द हाउस। तो आई थिंक ये चीजें कम होंगी। आपका क्या कहना है उस पर? I'm on mute. म्यूट पर है आप। Sorry. No, that's all good. नहीं, एक आप तो आपका सवाल ये कि अगर माँ बाप दोनों बच्चों का अगर ख्याल करते हैं तो फिर ये कि बच्चा अपना खुद मुख्तार होने में उसको हेल्प होती है, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ लाइक एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि जब फादर घर से बाहर होते हैं, तो जब बच्चे में थोड़ी सलाहियत आ जाए कि वो काम करने लगे या हाथ बटाने लगे, तो वो घर का मर्द हो जाता है, बिकॉज फादर नहीं है। तो जब कुछ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, लीड हो जाए, और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो जाए वो आदमी में, देन इट बिकम, ये सब कैरेक्टरिस्टिक आई थिंक डिफाइन करती है, देन आगे जाके हेल्प करती है, वो बिकम्स अ हार्ड मैन which you need to be if you want to conquer this world, in lack of a better term. तो समझ रहा हूँ you know, जी जी। तो you think अगर एक फादर एक which is a good thing, मगर जब बच्चा यंग हो, मगर वो उसके एडोलेसेंट ईयर्स के बाद में टीनेज में जाता है, जब बहुत ज्यादा
लोग जब आई थिंक ये टीनेज का जो मुकाम है वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर ये है कि बैलेंस मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। एक है, आप अगर ये, हाँ ठीक है कि अगर बाप बिजी अगर होता है आदमी बन तो, सके। हेलो वही। कामरेड जी, कैसे हैं और ये आप? सब चीजें लैक करने लगेंगे यार। अच्छा, राज यू हैव ड्रॉप्ड ऑफ। खैर, बट जो आपने बात रखा हुआ है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ मजीद के, ये कि हाँ ठीक है कि अगर बाप बिजी है तो ऑब्वियसली घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं या बड़े काम होते हैं, जो ग्रोसरीज हैं या बिल्स हैं या मेकिंग माइनर डिसीजंस इन द एब्सेंस ऑफ द फादर, ये सारी चीज़ों में जो लड़का है ना वो इन्वॉल्व, लड़का या लड़की जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे ये कि उनकी मैच्योरिटी थोड़ी जल्दी हो जाती है, विच इज़ गुड, विच इज़ ऑलवेज गुड, बट अगेन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ हैविंग नॉट स्पेंड एनी टाइम विद द फादर। ये कि दोनों का अगर इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो यू कैन ऑलवेज मेंटेन ए बैलेंस, कि कुछ काम आप आमदन बच्चे को दे सकते हैं कि भाई जाओ और ये करके आओ और ऐसे करो, जस्ट टू मेक श्योर के यू नो दैट यू आर ट्रेनिंग द बॉय एंड द गर्ल द राइट वे। बट देर इज नो एक्सक्यूज फॉर द फादर के वो बच्चे के साथ टाइम ना गुजार सके जस्ट बिकॉज कि वो बच्चा जो है ना वो खुद मुख्तार हो जाए, वो गलत है। तो यस, यू हैव टू गिव देम give them the liberty to do whatever they want to and let them make their own decisions, or at the same time you be there and then you be a support for them. That's my answer. कामरेड जी, कैसे हैं आप? आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है दोनों राज और कॉमरेड साहब दोनों ऑफलाइन हो गए हैं, बट दैट्स फाइन। तो नमन साहब कहते हैं, ये नमन साहब हैं, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं, वो द कन्वल शो के ऊपर अक्सर आते होते हैं और अपने खुश ख्यालात पेश करते हैं। जराज, आपने अब मेरी बात सुनी है, मैंने जो जवाब दिया था? सॉरी, नहीं तो नहीं सुन अब पाया। आई वाज जस्ट सेइंग कि बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, और द फादर एंड मदर इवन विद utmost केयर, उसके साथ साथ दे वुड हैव टू डिसाइड टू लेट द चाइल्ड डू सम ऑफ द डेली चोर्स, इवन दो दे कैन, वो खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और खुद अपने डिसीजंस लें, जिससे कि ये कि बट अगेन हैविंग नॉट हैविंग अ फादर just so that the child can be given an opportunity to do stuff on his own and become a man, it is not acceptable. There have to be a balance. You know, you need बच्चा तो बच्चा ही है. You need the caring and loving from both the parents. Uh, at the same time, they have वो उनको थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए. कॉमरेड साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप म्यूट पर हैं कॉमरेड साहब. अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। चले आज जी आप बिल्कुल. टीम हो गई आपकी शुरू। मैं भी ऑफिस में था शायद पे, आप अच्छा टॉपिक है आपकी पैस जो है वो बच्चों के रिलेशंस और उनकी जो है वो किस तरह से बच्चे जो है वो ग्रोन अप करते हैं, तो अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी कॉमरेड भाई, आज से मैंने एक चीज़ और शुरू की है कि मैं शुरू में जब लोग आते हो जुड़ते होते हैं तो मैं थोड़ी सी करंट अपडेट जो इंटरनेशनल न्यूज़ है मेन मेन, वो एक उसको मैं पढ़कर उसके ऊपर तबसरा कर रहा था, तो वो मैंने पहले किया, और ये राज साहब का आइडिया था कि वो पेरेंटिंग पर डिस्कस करना चाहते थे, तो फिर वो सवाल जवाब हो रहे हैं। तो आपने पहले दो सवाल तो सुने होंगे कि भाई किस तरह से क्या है, आपका कुछ तबसरा है उस बारे में? शारिक भाई, मैं अभी लाइव देखा आपको, तो मैं जी जी, सीधा कोई बात मैंने ज्वाइन किया, बैक पे नहीं जाके देखा। मैं देख के आ जाऊं, अगर आप कहें तो मैं देख नहीं, लूं कोई पहले। बात नहीं, हम मजीद कंटिन्यू नहीं, पहले ये बेसिकली ये सवाल था कि भाई बाप का क्या रोल होना चाहिए बच्चे के परवरिश में, क्या रोल ज़रूरी है, तो फिर हमने उसके ऊपर डिड्यूस किया कि हाँ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। पहले के हालात कुछ और थे, लेकिन ये कि जो बच्चे के साथ दोनों माँ बाप वक्त गुजारते हैं और परवरिश में हिस्सा बनते हैं, तो फिर वो बच्चे की जो मानसिक संतुलन है वो बेहतर होता है, और डिसिप्लिन वाइज एंड दे बिकम अ गुड पर्सन। और फिर दूसरा सवाल था कि भाई कि जो बाप जो काम करते होता है, बिजी होता है, तो बच्चे को टाइम नहीं मिलता, तो वो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, बट दैट हेल्प्स हिम बिकम अ मैन अर्लियर। तो फिर हम लोग मैंने इसका एक जवाब ये दिया कि भाई ठीक है, लेकिन ये कि बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज के बाप बिजी है, बच्चे के साथ टाइम नहीं गुजार सकता और बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, ये कोई रीज़न नहीं है। यस, आप माँ बाप दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एट द सेम टाइम एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए और बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो उनके होते हुए भी इनके प्यार और दुलार के अलावा ये अपने खुद से डिसीजंस ले सके,
और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो होता है ना कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चे को लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, उसमें कुछ सीखता नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों में से कोई एक चला जाता है तो द चाइल्ड इज लेफ्ट डेवस्टेटेड, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम, उसको वो नहीं मालूम। बस इतनी शारिक बात भाई मैं वो, जी जी, वो बच्चा जो है ना, शुरू से ही उसके माइंड में ये होता है कि फादर ने मुझे कम टाइम देना है क्योंकि उसने बाहर काम करना है, और मदर जो है उसके पास जो है वो होती है, तो बच्चा मेंटली तौर पर इस चीज के लिए प्रिपेयर होता है कि फादर ने मुझे कम टाइम देना है, तो वो उसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो काम करते हैं ना, तो वो बच्चे की लाइफ जो है वो, मुझे जो मैंने देखा है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो बच्चा जो है वो अपने आप को इग्नोर चाइल्ड में समझ रहा होता है, उससे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि दोनों मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में मोस्टली जो है वो 10% या 5% ऐसे होते हैं जो दोनों काम कर रहे होते हैं। तो वो जब दूसरे बच्चों को बाद में देखता है ना कि माँ ने उसको जो है वो किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से उसकी केयर की, तो फिर वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा, मेरा ख्याल है, एहसास कमतरी में चला जाता है। वो फैमिली फाइनेंशियली तो स्टेबल हो जाती है, लेकिन बच्चों का मेंटल जो स्टेटस है ना, वो उस नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं रहता। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। जी राज, आप बात करें। राज, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आप लोगों को आ रही? हाँ, अभी जी आपकी जी, आवाज़ आ रही क्लियर आ है, रही है। पहले म्यूट हेलो। पे थे आप। आपकी मैं आवाज़ आ रही सॉरी, है, मैं पहले म्यूट पे वापस थे। ज्वाइन करूँ? जी कॉमरेड भाई, राज साहब तो थोड़े से बिजी हो गए। जी शारिक भाई। हाँ जी सर। अच्छा शारिक भाई, अ, ये मेंटल इंसान का जो है ना वो स्टेटस जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। वो ये जरूरी नहीं कि बचपन में वो चेंज हो जाए। बचपन में अक्सर एक केस तो मेरे सामने है कि बचपन में एक बंदा नॉर्मल था, बाद में जो है वो उसका मेंटल स्टेटस जो है वो अजीब तरीके से जो है कंप्लीटली चेंज हो गया। मेरा ही एक दोस्त था उसका। तो ये जरूरी नहीं है कि बचपन में जो जिस तरह से उसका वो हुआ है उसी तरह से जो है वो सारी जिंदगी उसका रहेगा। कभी भी जो है वो चेंज हो सकता है। ये कभी आपने एक्सपीरियंस किया? आपको आपने किया है, बिल्कुल किया है आपने, तो वो आपका एक दोस्त हम देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है अक्सर लोगों का ये भी होता है, और इसमें जो है वो उसकी तरबियत का कसूर नहीं होता, माँ बाप का जो है वो अपने तौर पर जो है वो बच्चे के साथ अच्छी तरबियत करते हैं। लेकिन बच्चा जो है ना, कुछ चीजें जो है वो बचपन की चीजें तो अपने माँ बाप से लेता है, लेकिन बाद में जो है वो सोसाइटी से भी बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करता है। तो वो सारी जिंदगी उस स्टेटस पे नहीं रहता जो उसने, उसके माँ बाप ने उसको जो है वो ग्रोन अप किया है जिस तरह सो कुछ चीज़ें ये ऐसी भी। इंटरेस्टिंग, सॉरी, इंटरेस्टिंग बात है ये। मैं इसके बारे में भी बात करना चाहता था कि वो, आई बिलीव कि थोड़ी ऐसी चीजें हैं जो एक आदमी को, आई थिंक मैं अभी ये सिर्फ लड़के के दिमाग की तरफ से बात कर सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें ये है कि एस्पेक्ट्स है ऑफ जिंदगी जो बच्चे के साथ रह जाती है। और मैंने ये रियलाइज किया है थोड़े दिन पहले, अगर कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत कैसे कहें क्रिटिकल स्टेज अब आ जाता है ना डिसीजन मेकिंग का, तो you react exactly the way you've seen your parents react, and I've seen, or like I think judgment जो है ना, आप वो भी कैरी करते हो। तो बहुत फॉर अ सर्टेन डिग्री आप अपने पेरेंट्स से जजमेंट को जिस तरीके से वो लेते थे चीजों पे, लोगों पर या बातों पर, वो आप कॉपी करते हो 100%। आई I'm really in like interesting और चीज लगती है मेरे को ये कि लोग बाकी जब बड़े हो जाते हैं, फिर लोगों में रहते हैं, उससे तब्दीली जो आदमी के पर्सनालिटी पे आती है, वो कितनी डिग्री डिफरेंट है पेरेंट्स से, वो आई डोंट नो। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है पेरेंट्स के जो देते हैं, वो कितने रह जाते हैं और बाहर से जो रह जाते हैं, उसके बारे में बात करना चाहिए। से। तो अच्छा, मैं। एक चीज और है शारिक भाई। जी जी, सॉरी, बात हाँ नहीं नहीं, जी। बात करें। अच्छा शारिक भाई, कहते हैं कि फादर इज योर हीरो। बाप को जो हमेशा हीरो की नजर से जो है बच्चे देखते हैं। स्पेशली वो लड़का जो होता है वो अपने बाप को हीरो समझता है, और वो उसको जो है एडमायर बहुत ज्यादा जो है वो उसका आइडियल भी होता है। तो वो कभी कभी ऐसा होता है जो चीज एक्सीड कर जाए ना, तो
फिर वो उससे उस बच्चे को नफरत भी हो जाती है। मेरा ही एक दोस्त है, उसका फादर जो है वो 24 आवर्स ड्रंक रहता था। सुबह उठते ही जो है वो शराब पीता था और रात तक जो है वो ड्रंक ही रहता था। तो वो उसको जो है, मेरे दोस्त को इतनी नफरत हो गई कि अगर उसका बाप उससे कहता था ना मुझे ग्लास उठा कर दो, तो वो कहता था यार मुझे शराब के ग्लास जो है ना, खाली ग्लास उठाने से भी बड़ी नफरत है। मैं टिश्यू से जो है ना उठाकर अपने बाप के सामने रखता हूँ, मुझे बहुत नफरत हो गई। तो कोई चीज जो जब एक्सट्रीम पे चली जाए ना, तो बच्चे जो है उसको ऑपोजिट जो है ना बिल्कुल जो है उसको चले जाते हैं और वो उस चीज से बिल्कुल नफरत होने लगती है उसको। बिल्कुल सही, मैं टोटली एग्री करता हूँ ये चीज़ से कि भाई होता ये कि वो जो चीज़ें होती हैं, जस्ट नॉट हैविंग अल्कोहल, शराब पीने के बाद में जो तासुरात होते हैं, जो जो भी बात होती है, आपको पता ही है कि नॉर्मल स्टेट में तो होते नहीं, तो उसमें वो क्या बेटे के साथ करते थे, क्या बोलते थे, क्या था नहीं मालूम। उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं अल्कोहल के, तो वो उससे भी उनको एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस, या फिर ये कि सोशल जो टाबू, लोग कहते हैं कि भाई इनका बाप शराबी है, या कि एक चीज़ को बुरा माना जाता है समाज में और इनका बाप करता होता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ऑब्वियसली आई मीन कोई भी बच्चा ऐसे ही नहीं बड़ा हो जाता, देर आर डेफिनेटली सम थिंग्स दैट गो रॉन्ग, एंड ऑब्वियसली किसी को अपने माँ बाप के साथ दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई मुझे बहुत टोकते हैं, या बहुत काम लेते हैं, या पढ़ाई की तरफ ज़्यादा वो पुश करते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चों में पढ़ाई से भी बाज़ लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। दे डोंट वांट टू बी फोर्स, दे डोंट वांट पुश, दे डोंट वांट बी टोल्ड व्हाट टू डू। बाहर खेलना है आजकल, पहले होता ये था कि बच्चे बाहर मोस्टली इतना बाहर खेलते थे कि माँ बाप कहते हैं घर ही नहीं आते। अब ये कहते हैं कि माँ बाप के भाई तू घर में हमेशा बैठे होते हैं, बाहर जाओ, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन्स का जो आ गया है ना, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ थिंग लाइक विद किड्स, अगर आप उनको बोले ना कि भाई आप ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं ऑनलाइन, दे डोंट लाइक इट बिकॉज़ दे आर सो एडिक्टेड टू इट। ऑब्वियसली आप किसी चीज़ से अगर आप एडिक्टेड हैं और आपको पुश किया जा रहा है कि भाई वो ना करो, तो आपको इरिटेशन होता है। बिकॉज़ आई लाइक इट सो मच दैट आई वांट टू कीप डूइंग इट, बट एट द सेम टाइम इट्स फॉर द पेरेंट्स कि उनको डिसाइड करना है कि वो बच्चे उनके कितना टाइम स्पेंड करते हैं ऑनलाइन, लेकिन ये बच्चे समझ नहीं पाते। तो हो जाता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से किड्स जो है ना वो अपसेट रहते हैं, एंड इट कैन अफेक्ट देयर माइंड एडवर्सली। जी राज। जी, कभी कभी ऐसे लगता है कि इनकी जो फिक्र है माँ बाप की वो बाधा बन जाती है। मेरे को ऐसे लगता है कि माँ बाप की जो फिक्र है, चलो वो जायज तो है, मगर माँ बाप को सपोर्टिव रहना चाहिए, प्रोटेक्टिव नहीं। आई थिंक इट्स गुड कि लोग ट्राई करके, एरर करके, फेल होकर समझे कि चलो ये गलत है, तो वो आपको ट्रायल एंड एरर में सीखते हैं। अगर आप जिस तरह आप ये कहते हो कि नहीं नहीं भाई इसमें रिस्क है, ये नहीं करता, मैं जस्ट कंजर्वेटिव रहकर जी लूं, तो उसमें ज्यादा कुछ सीखता नहीं है आदमी। सिर्फ जिस तरीके से जिंदगी जी रही है वैसी ही चलती है उसकी। बिल्कुल। ये कॉमरेड भाई कुछ कहना है आपको? और शारिक भाई, दूसरी चीज ये है कि नेचर ने भी जो है ना वो बड़ा बैलेंस रखा है पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशंस में। अगर बाप जो है ना वो थोड़ा सा सख्त मिजाज हो ना, तो कुदरती तौर पर माँ जो है वो पोलाइट होती है। और बाप अगर माँ अगर कोई बहुत सख्त हो और तो वो बाप पोलाइट हो जाता है। तो ये नेचर ने भी जो है वो बैलेंस रखा है बच्चे की परवरिश के बीच में। इस तरह से मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं जहाँ पर बाप अगर बहुत सख्त गिर है तो वो माँ बहुत पोलाइट होती है, या बाप अगर माँ अगर बहुत ज्यादा इस तरह गुस्से की है तो फिर बाप थोड़ा पोलाइट हो जाता है। तो बैलेंस जो है वो नेचर किसी न किसी तरह से बच्चे की शुरू में रखती है। बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करता हूँ ये बात से आपके कि ये नेचर प्लेज अ बिग रोल इन इट। ख़ास तौर पे होता है ऐसे कि जब आपने जैसे कहा है कि हाँ, अगर माँ सख्त है तो बाप ऑब्वियसली वो हो जाता है कि चलो ठीक है यार, बच्चे के ऊपर वो देख रही है ना, तो लेट मी टेक इट ईज़ी और लिटिल बिट। लेकिन वो लोग जो जिनके माँ भी सख्त है, बाप भी सख्त है, तो वो तो बच्चों की मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी हेल हो जाती है। एक बात ये ना कॉमरेड के होता ये कि आपके पास उमन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आपको बच्चों को इनके जो स्कूलिंग होती है वो बड़ी लेट शुरू करते हैं, एटलीस्ट वो 5 इयर्स के होते हैं तब जाकर शुरू करते हैं, क्योंकि ये पता है कि बच्चे का दिमाग पूरा बनते बनते ही 5 साल लगता है, तो उससे पहले उसके ऊपर प्रेशर डालना वो बहुत गलत है।
लेकिन इंडिया में तो होता ये है कि बच्चा 3 साल का ही होता है, उसको प्राइमरी स्कूल में, किंडरगार्टन में, यहाँ वहाँ भेजना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर बाज़ाब्ता बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अल्फ़ाबेट्स पढ़े और ये पढ़े वो पढ़े, तो वो द ब्रेन इज़ नॉट मेड येट। बच्चों के ऊपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इस तरह से है कि अगर वो किंडरगार्टन में कुछ प्रॉपर अगर नहीं पढ़ लेता या पढ़ लेती, तब तक उनको दूसरा जो है ना कि आप जो एलकेजी होता है ना, लोअर क्लास जो होती है, जिसमें आपको पहली क्लास उसमें एडमिशन मिलने के लिए भी आपको एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, इतने छोटे बच्चे के भी, माँ बाप के भी इंटरव्यू होते होते हैं बच्चे की भी। तो माँ बाप को ये होता है कि ना, हाँ चलो कम से कम बच्चा जो है ना ये थिंग्स को आइडेंटिफाई करे, तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सो आई डोंट नो वेयर दैट, कहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, पर आई स्टिल थिंक के बच्चे जो शुरू में उनके ऊपर ज़्यादा पुश किए जाते हैं ना, वो बच्चे बहुत जल्दी बेजार हो जाते हैं। आई थिंक मगर एक क्या कह सकते हैं, गुस्सेल माँ से अच्छी गुस्सेल गुस्सेल बाप है। आई थिंक गुस्सेल बाप बेहतर होता है आदमी के लिए, बिकॉज आई थिंक ये सब जो चीजें हैं, जैसे एम्पैथी हो जाए, इमोशन हो जाए, अफेक्शन हो जाए, ये सब चीजें जरूरी है आदमी को सीखने के लिए और एक बच्चे को सीखने के लिए। और ये सब चीजें आई थिंक नेचुरली माँ से आती हैं। तो आई थिंक राज, आई डोंट नो, मे बी आप क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जो आवाज़ है ना वो कट रही होगी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई डोंट नो इफ यू आर ऑन म्यूट और नॉट। कमर भाई, आपको कुछ कहना है सर? हाँ शारिक भाई, ये तो मेरे अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे फादर बहुत बिजी होते थे बचपन में। तो वो पूरा होमवर्क जो है ना पूरे हफ्ते का, वो संडे वाले दिन जो है वो पूरे हफ्ते का बोलते थे, बताओ चेक करवाओ मुझे सारा कुछ। तो वह इस तरह से जो है ना वो पढ़ाई से जो है वो बहुत बेजारी हो जाती थी। फिर सोचते थे यार ये क्या अजाब है, संडे वाला दिन तो छुट्टी का होता है, एंजॉय करने का होता है। तो ये हमारे फादर जो है ये पूरे हफ्ते का जो है वो पूरा हिसाब मांग रहे हैं हमसे, क्या पूरा हफ्ता पढ़ा। तो जब पेरेंट्स, फादर स्पेशली जब बिजी हो और थोड़ा सा अपने उसमें एटीट्यूड में थोड़ा सा मिजाज में भी सख्त हो, तो बच्चे बहुत सारा ज्यादा परेशान भी होते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस ये है कि फिर वो कुछ फादर्स की जो है वो इस तरह से भी होती है कि वो थोड़ा सा जो है ना एक्स्ट्रा बर्डन भी बच्चों पे डाल देते हैं। तो उससे भी जो है वो फिर चिढ़ सी हो जाती है उससे। एक तो डर तो बैठ जाता है बच्चे के दिल में अपने बाप के लिए। जैसे मैं अभी भी अपने बाप से डरता हूँ, अभी भी मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कम से कम उनके सामने आऊं। अगर कोई काम वो मुझे कहते हैं कि ये करो, और फिर मैं अगर वो उसको चाहे भाई टाल दूं, तो फिर वो नेक्स्ट डे वो काम मुझे सामने बैठ के वो कहते हैं ये मेरे सामने करो। फिर वो और भी बहुत ज्यादा जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक एक चीज को पॉइंट आउट करेंगे, ये इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो फिर वो सोचते हैं कि यार कल काश कर लेते तो अच्छा था, आज जो है इस हिसाब से तो वो अपनी अकेले में करना ज्यादा आसान था बजाय इसके कि इनके सामने बैठकर। तो वो थोड़ा सा सख्त मिजाज जो है माँ बाप, थोड़े से डिसिप्लिन आ जाता है। लेकिन फिर बच्चा जो है ना थोड़ा सा घर से भागने की कोशिश करता है कि यार मैं जो है ना किसी तरह से भागूं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने बोला यार मैं निकलूं बाहर और भागूं, और थोड़ा सा जो है ना वो अ, जब थोड़ा सा बच्चा जो है वो बड़ा होता है तो फिर बोलता है यार मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए। फिर तो फ्रीडम के लिए फिर वो बच्चा भागता है। तो पेरेंट्स जो है ज्यादा अगर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है तो फिर बच्चे शेयर करते हैं। लेकिन माँ के साथ तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होता है बच्चा। जैसे मेरा मेरा रिलेशन अपनी माँ के साथ बहुत फ्रेंडली था। तो वो लेकिन मेरे फादर जो है वो थोड़े से सख्त गिर अभी भी हैं। तो वो चेंज नहीं होती, नेचर जो है वो चेंज नहीं करते। तो जिस तरह की आपकी बनी हुई है ना वो शुरू से फिर वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं। आप बच्चा बड़ा भी हो जाए तो फिर वो उसी तरह से ट्रीट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोस्टली होता ये है कि अगर चलो फादर आपके अगर वीक डेज में सारा काम करते होते हैं, तो लेकिन फिर भी उनको कंसर्न होता है कि भाई मैं चेक करूं कि बच्चा कैसे कर रहा है, तो फिर वो उनके पास होता ही संडे है, तो फिर वो आप उसके साथ बैठ जाते हैं कि भाई चलो ठीक है। लेकिन इसके अंदर मोस्टली लोग ये भूल जाते हैं कि भाई ये वीक डेज के में भी काम था, फिर संडे तो आप जैसे कह रहे हो कि रेस्टिंग डे है, तो कम से कम
कम से कम एक दिन तो छोड़ दो। लेकिन मैं ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, फैक्टर्स ये कि दे पेरेंट्स समटाइम्स दे डोंट लुक एट यू विद योर पर्सपेक्टिव, बट दे वांट टू लुक एट यू विद देयर ओन पर्सपेक्टिव, कि भाई वो अपना जो बचपने के जो एहसास थे, अगर वो वीकडेज में खेलते कूदते होते ज़्यादा और उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, तो वो वही जो उनके दिमाग में ना वही लेके चलते होते हैं। नहीं डिजीज के जो शारिक भाई, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे दादा जो है वो इतना ज्यादा जो है वो अपने बच्चों पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे। वो तो हो सकता है वो क्या, रीजन हो सकता है ना कॉमरेड, के भाई वो भी वो स्ट्रिक्ट नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैं ऐसा नहीं करूंगा जो मेरे वालिद ने किया, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, ये भी तो हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कुछ तो अडॉप्ट की जाती है चीजें, कुछ जो है वो जस्ट ऑपोजिट चले जाते हैं, ये होता है। हम्म। तो वही ये बोलने का मतलब कि दे जस्ट हैव देयर ओन पास्ट एक्सपीरियंसेस बेस्ड अपॉन विच ये लोग डिसीजंस लेते हैं कि हम हमारे बच्चों के साथ ऐसे नहीं रहेंगे। कुछ माँ बाप जैसे कि जैसे आपके वालिद हैं, वो आपके साथ बड़े सख्ती से रहे, तो आप दूर दूर रहना शुरू हो गए उनसे, तो लेकिन आप हो सकता है कि ये नहीं करोगे अपने बच्चों के साथ, बल्कि उनको इनक्रेज करेंगे कि आप वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, और उनके साथ आप थोड़ा सा सॉफ्ट, ऐसे होता है अक्सर। तो आई डोंट नो इफ यू कैन। लेकिन शारिक भाई वो मोहब्बत जो है ना, वो उसमें कमी नहीं आती। बाप अगर सख्तगीर भी हो ना, तो मोहब्बत उनसे उतनी ही होती है। मतलब अगर पोलाइट हो बाप, तो भी उतनी मोहब्बत होगी। जैसे मेरे फादर सख्त थे, लेकिन मोहब्बत मैं उतनी ही करता हूँ जितना कोई बाप जो है ना, वो जितना फ्रेंडली भी होगा ना उतना करेगा। तो वो प्यार जो है वो, लेकिन वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते ज्यादा। जैसे मेरे फादर हैं, वो मैं जानता हूँ कि वो कितना प्यार करते हैं। वो अगर हम कहीं पर हो और किसी मुश्किल में हो, तो वो हर जगह जो है ना वो मतलब हमें वहां से निकालेंगे, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर वो कुछ भी करेंगे। लेकिन किसी भी आपको क्राइसिस में देखेंगे, वहां से निकालेंगे, आपको रेस्क्यू के लिए पहुंचेंगे। लेकिन यह है कि वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे आप कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या मुझे कितनी तो वो ये चीज है। लेकिन वो प्यार तो होता ही है डेफिनेटली बच्चों से। हाँ, वो थोड़ा मेल ईगो जो है ना वो आ जाता है बाज वक्त, which makes it harder for them to acknowledge their love and affection, whatnot. बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। शायद भाई, मैं आपको अपने एक फ्रेंड का मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, वो मैं आपको सुनाऊंगा जब आप किसी वो सीरियस टॉपिक से हटेंगे ना, तो फिर मैं आपको उसका किस्सा सुनाऊंगा। वो मुझे याद था। तो जब आप वो थोड़ा सा जो है ना वो नहीं, अजीब बोले सा बोले है। आप, बोले 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 आप। शारिक भाई, मेरा एक दोस्त है, वो बैंक में था, ठीक ठाक अच्छा भला था। वो किसी एक दोस्त के साथ ना उसकी बहुत क्लोज रिलेशन थे दूसरे दोस्त के साथ। वो दोस्त जो था ना, उसका जो दोस्त था, अब देखिए कहानी स्टोरी कैसी है। उसका जो दोस्त था वो बहुत रिच थे, लेकिन क्राइसिस में आकर ना किसी तरह से वो बहुत ज्यादा जो है लो चले गए फाइनेंशियली, बिल्कुल जो है वो जमीन पर आ गए। तो वो ये जो है ना उनको फाइनेंशियली जो है इनकी हेल्प करने लगा। मेरा जो बैंकर दोस्त था ना, वो उनकी, तो वो इस तरह से जो है फिर वो उसका इतना क्लोज हुआ शारिक भाई, इतना क्लोज हुआ कि उन्होंने सोचा, वो जो मेरे दोस्त के पेरेंट्स थे, उन्होंने बोला यार हमारे बच्चे तो काम करते नहीं। उनके बच्चे काम नहीं करते थे, क्योंकि वो शुरू से बहुत रिच थे। वो किसी बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, कोलैप्स कर गया बिजनेस उनका, वो खत्म हो गए टोटल, बिल्कुल सड़क पर, इस तरह समझ ले सड़क पर आ गए। तो अब वो मेरा जो बैंकर दोस्त था ना, वो अपने दोस्त की जो है वो हेल्प करता था। बहुत बहुत अपनी पूरी सैलरी उन पर लगाता था। बैचलर था, शादीशुदा नहीं था, तो अपनी सारी सैलरी उन पर लगाता था। एक दिन उसके दोस्त के फादर ने, चाहे भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके दोस्त के फादर ने अपनी वाइफ को बोला कि वो जो हमारा खानदानी डायमंड है ना, 2 डायमंड पड़े हुए हैं, वो जरा ले आओ। तो वो मेरा दोस्त बड़ा शॉक हुआ, था बड़ा सेंसियर उनके साथ। लेकिन यह है कि वो थोड़ी इंसान के अंदर होती है ना, कि कुछ थोड़ी सी पता नहीं, कहीं ना कहीं उसके शऊर के नीचे एक लाशऊर में कोई थोड़ी सी जो है वो ग्रीडी होता है इंसान। तो उसने सोचा यार ये तो मुझे, मैं क्या दे रहा हूँ इनको, कुछ भी नहीं दे रहा, बदले में मुझे जो है वो 2 डायमंड्स कोई बहुत अरबों खरबों रुपए के हैं। तो उन्होंने ऐसा किया। वो अब वो इंतकाल कर गए हैं। उसके मेरे दोस्त के जो दोस्त के पेरेंट्स हैं, वो अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि वो अपनी वाइफ को बोला वो जो डायमंड है ना 2 ले आओ। तो वो ले आई, वो कपड़े में लपेटे हुए थे, और मेरे दोस्त के सामने रख के बोला, अपनी वाइफ को बोला कि ये एंड में बाद में जो है ना
हम इसको देंगे क्योंकि ये इसने हमारे बच्चों से ज्यादा हमारी केयर की है। और मेरे दोस्त को बोला ये अरबों रुपए के हैं, इनकी कीमत जो है ना बहुत अरबों रुपए में है, तो ये हम आपके लिए रख रहे हैं। अब वो उसको समझ रहे हैं शारिक भाई? मैं समझ रहा शारिक हूँ। भाई समझ रहे? मुझे तो समझ गेम रहे लगता है, मुझे तो गेम लगता है हैं? ये। सुने ना, सुने। फिर उसके चले, वो तो इंतकाल कर गया ना, लेकिन मेरा दोस्त जो था ना शारिक भाई, उसका क्या हुआ बेचारे का, वो दो उसको डायमंड मिल गए बाद में, और वो चले गए। और वो पूरी उनकी एंड तक जो है ना वो खिदमत करता रहा। लेकिन वो फिर बाद में उसने, पागल ने क्या किया, वो बैंक की जॉब भी छोड़ दी। जब उसके हाथ में वो 2 डायमंड आए ना, तो उसने बैंक की जॉब भी छोड़ दी। उसने बोला मेरे पास यार अरबों रुपए के हीरे हैं, मैं बैंक की जॉब कर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेंटल आपका स्टेटस कभी भी चेंज हो सकता है। अच्छे भले आप जो है ना वो पागल हो सकते हैं किसी भी तरह से। तो वो उसने जो है ना वो सोचा मेरे पास ये है, तो अब मुझे कोई जरूरत नहीं। उसने जॉब वॉब छोड़ के घर बैठ गया। अभी अभी वो हाफ मेंटल है, हाफ फ्राई है। वो हम उसको पागलों की लिस्ट में काउंट करते हैं। वो कहता है मेरा ये जो है ना, अब वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि 1 ग्राम जो है वो कितने का है, और ये मेरे जो है वो 20-20 ग्राम के। तो ये मेरे सामने है वो बंदा, हम उसको जो है वो पागलों की कैटेगरी में ले आए। जैसे वो आपका वो जानने वाला है ना मरदूत, वो इस तरह से ये है। वो हमारा दोस्त भी जो है, ये ये दोनों जो है, तो वो बचपन में, हालांकि उसको अच्छा भला फैमिली है, बचपन में वो यहाँ तक देखे, यहाँ तक बैंकर बनने तक भी जो है वो नॉर्मल था। अब वो कभी भी इंसान का माइंड जो है किस वक्त जाके जो है चेंज हो जाए, ये बड़ी ही हैरत की बात है। बड़ा समझ से बाहर है ये चीज। तो फिर उसने हीरो का किया क्या, फिर बेचा उसको कि अमीर हो गया या क्या हुआ? तारिक भाई अभी भी हीरे उसके पास है अभी। अच्छा, अभी भी उसको जो है ना वो 5-6 साल हो गए हैं उसको हीरे मिले हुए। हमने बोला यार अगर वो होता ना, शारिक भाई, वो ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन नाउ। वो जहां जाता है ना, तो वो पहले उसकी तारीफ करता है कि भाई ये। अभी एक ज्वेलर के पास गया था कुछ 1 साल 2 साल पहले, तो वो ज्वेलर, उतना ज्वेलर जो था ना, वो और भी ज्यादा हरामी निकला उससे। ज्वेलर ने उसको बोला अच्छा ये कोई किसी जो है वो बादशाह के हीरे हैं, ठीक है। उसने वो मजाक उड़ाने के लिए ना, वो अब अपने 2-3 ज्वेलर्स और साथ साथ जो थे ना उनको बुला के बोला भाई ये हीरे लेकर आया है भाई साहब, और इनके जो है ना ये मिलियंस में है, तो अब हम इनको खरीद तो नहीं सकते। तो फिर उसने बोला कि ये जो है ना ये आपका या दुबई में बिकेगा, या अमेरिका में बिकेगा, या इंग्लैंड में बिकेगा, यहाँ नहीं। तो उसको जो है ना वो और ज्यादा वो मेंटल हो गया। उसने बोला यार यहाँ नहीं बिकेंगे ये, तो मुझे बाहर बिकेंगे। तो वो मतलब वो डे बाय डे जो है ना वो बैड टू वर्स की तरफ जा रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि वो जो हीरे हैं ना वो शायद उनको एक्चुअली देखा जाए ना तो हीरो का जो प्राइस है ना वो कोई सेट प्राइस नहीं होता। ये इसका बल्कि इसको जो मर्जी में आया वो आप प्राइस में बेच सकते हैं। तो यूजुअली अगर आप वो ले लेते हैं ना कि कहीं से डायमंड आप ले लेते हैं, फिर उसको मार्केट में अगर आप बेचने जाएंगे तो उसका वो रेट नहीं आएगा, बहुत कम करके बोलते हैं। तो वो हो सकता है कि इसका एक्सपेक्टेशंस वो था, वो मिलियंस में था होगा जब ये गया है बेचने के लिए, तो उसको वो उतना रेट आया नहीं होगा। पता नहीं क्या केस है, या फिर ये ऑब्सेस्ड हो शारिक गया भाई होगा। डायमंड शारिक भाई डायमंड्स की कोई वैल्यू नहीं। उसकी मदर ने एक दिन मुझे बोला कि ये इसके जो है ना जहन से किसी तरह ये वहम निकाल दो ताकि ये नॉर्मल हो जाए। मैं शारिक भाई उसको मार्केट लेकर गया। मार्केट ले जाकर मैंने उसको जो है वो डायमंड जो है ना जो उसके पास है ना वो स्टोन्स हैं। मैं उसको लेकर गया, मैंने बोला यार देख ये होलसेल मार्केट है, तेरी अम्मी इतनी परेशान है, तो तू थोड़ा सा जो है ना इसको यहाँ पर जज तो कर। तो वो उस जैसे जैसे उसके पास थे ना, वैसे ही उसने पूरी बर्नी भर के उसको दिखा दी। बोला भाई ये 500-600 रुपए से ज्यादा का नहीं है। वो ज्वेलर पे चिढ़ गया, वो जिसके पास मैं ले गया उसको ने बोला पागल हो, तुम्हारे पास जो है वो और है, मेरे पास और है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि ये इंसान जो है वो मेंटली किस तरह से पागल हो जाए, किस स्टेटस में चला जाए, ये इंसान का माइंड जो है ना बड़ी मिस्ट्री है। मुझे तो मिस्ट्री लगती है ये सारी चीज जो है दिमाग इंसान का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये केस हो गया। ठीक है, मैं ये बात समझ सकता हूँ कि वो, हाँ ऑफ कोर्स ये एक बड़ा एक सदमा, एक इतना बड़ा अमाउंट डायमंड्स इनको दे दिया गया है, तो फिर ये कि वो कुछ अलग सेशन में चले गए होंगे, एक अलग वर्ल्ड में, और फिर उससे वो बाहर निकलना उनके लिए।
शाह साहब, अब आपका ये सारा कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, तो इस बारे में आज हमारा मौजू है पेरेंटिंग, जिस पर हम बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ बातें आपने सुनी भी होगी इस बारे में। आप भी आपके भी बच्चे हैं, कुछ आप इस बारे में कहना चाहते हैं? शाह साहब, म्यूट पर हैं आप। शाह साहब, आपको आ रही है बस? राइट, तो ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पेरेंटिंग किस तरह से क्या है। अभी बदलता ज़माना है, ज़माना पहले का कुछ और था और अब का कुछ और ज़माना है। आपके चैलेंजेस कुछ और हैं। एक ज़माना ये था कि भाई छोटी मोटी जॉब अगर बंदा कर लेता, पढ़ता नहीं लिखता नहीं तो कोई बात नहीं। कहीं जहाँ पर ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वैसे जगहों पर आपको नौकरी मिल जाती। being a security guard, being a janitor, being this and that, do all this helps. कंप्यूटराइज्ड ज़माना हो गया है, उसके हिसाब से ये कि फिर आपको चैलेंजेस भी उसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। छोटी मोटी जो जॉब्स थी वो सारी ख़त्म हो रही है और उसकी जगह ले लिया है कंप्यूटर ने। अगर कोई बंदा अगर एक जॉब अगर करता है तो फिर वो कंप्यूटर वो तीन लोगों का जॉब एक कंप्यूटर कर रहा है आजकल। तो जिसकी वजह से भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो गई हैं। तो उससे ये है कि फिर आदमी को जो है ना वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना होता है। हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है। छोटे मोटे ऑफिसों में पहले कंप्यूटर्स यूज़ नहीं होते थे, जहाँ पर पेपर खाते जो हमने देखा है होते थे, अभी वहाँ पर कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो बढ़ती हुई महंगाई और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसके हिसाब से पेरेंट्स के ऊपर भी एक इमेंस प्रेशर होता है, जिसके अंदर वो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े और वो ज़माने के साथ रहे, वरना ये कि हमारा बच्चा पीछे हो जाएगा। कंपटीशन अलग होता है, कंपैरिजन्स होते होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे प्रेशर आ जाता है। लेकिन उसमें लोग ये भूल जाते हैं ना कि बच्चे की एक मासूमियत है। वो ये कि मैं देखा हूँ एक कुछ फैमिलीज है जहाँ पर वो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, वो बच्चा टॉप करता है स्कूल के अंदर, लेकिन वो बच्चे के अंदर कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम्स आ गए हैं जो हमने आम लोग जो देखते हैं वो उनको पहचान लेते हैं कि वो बच्चा इतना डरा सहमा हुआ होता है। वो उसको छोटी सी उम्र में दमे की बीमारी, जिसे हम अस्थमा कहते हैं, तो वो बिल्कुल डरा सहमा हुआ हर छोटी बात के ऊपर वो माँ बाप की तरफ देखता होता है, क्योंकि वो माँ बाप चाहते हैं ना, वो थोड़ा सा नार्सिसिस्ट टाइप के जो होते हैं कि भाई बाप ने बड़ा आईटी किया हुआ है और माँ ने बड़ा डॉक्टरी किया हुआ है, तो उनका बच्चा भी जो है ना इन्हीं की तरह निकले, बल्कि उनसे आगे निकले। तो उस चक्कर के अंदर वो ज़्यादा प्रेशर बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, तो फिर ये कि इसके ऊपर उसकी सारी मासूमियत छिन जाती है, वो सहमा सहमा सा होता है। हाँ ठीक है कि पढ़ाई के मामले में वो बड़ा आगे बन जाएगा, लेकिन ये कि दूसरे जो बच्चे होते हैं शरारत करते हुए, हंसते मुस्कुराते खेलते, वो बच्चों की कंपटीशन में वो लाइफ के अंदर वो लिटरली उनके साथ साथ चल नहीं पाता। फिर ये कि गिग ऐसे करके लोग उनका ओपिनियन बना देते हैं। अम, बेशक वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगी और बड़ी से बड़ी जॉब करेंगे, बड़ा से बड़ा बिजनेस करेंगे, लेकिन जो खलिश है जो बड़े होते उन्होंने खोया है, वो खलिश फिर वो उनको कोई लाकर वापस दे नहीं पाता। लेकिन ये कि ठीक है, मैं लॉपसाइडेड या बायस्ड होकर अगर बात कर रहा हूँ तो दो तरफ़ा बात होनी चाहिए होती है। कि ये होता है कि ऑन द अदर हैंड कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि वो हम उनको बहुत हद तक उनको लिबर्टी देते हैं बच्चों को कि भी चलो यार बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। उसके अंदर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा है ना जो बिल्कुल ये कि उनके माँ बाप उनको कुछ नहीं बोलते। किसी के घर अगर जाते हैं तो उनके घर में वो तहस नहस, माँ बाप रोकते नहीं, बैठे होते हैं कि वो जो कर रहे हैं करने दो, ऐसे जैसे अपने बच्चे हैं नहीं। तो ऐसे भी होता है और टू मच अगर आप किसी को लाड़ प्यार भी अगर आप देते हैं ना तो फिर वो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये कि फिर वो सामाजिक प्रॉब्लम्स में शिकार हो जाते हैं कि जो भी उनको चाहिए होता है माँ बाप उनको फराहम कर देते हैं आसानी से। लाडला बेटा लाडली बेटी और ऐसे केसेस के अंदर बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। उनका ठीक है कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा होता है, उनका खुद मुख्तारी जिसे कहते हैं आप, या वक़ार जो कहते हैं आप, उसके अंदर वो बिल्कुल एक अच्छे लेवल के ऊपर सोचते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू चैरिटी, व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग हैंड एंड ऑल दैट, दे कैन बी वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम दे कैन बी रियली केयरलेस इन मेनी थिंग्स। ज़िंदगी की जो सच्चाई है वो उतनी आसान डगर पे नहीं है। बहुत गड़े खुदड़े होते हैं जो सफ़र उतना आसान है नहीं। तो वो चीज़ हमें ये कि ये बहुत ज़्यादा अपने हद तक ये रिलैक्स हो जाते हैं। एंड देन दे कैन टेक सम हैप्पीज़ डिसीजंस विथ विच उनका लॉस हो सकता है। तो दोनों तरफ से आपको देखना होता है कि यू हैव टू ऑलवेज मेंटेन ए बैलेंस। तो
माँ बाप को चाहिए होता है कि बच्चों के साथ एक सख्त नज़र रखें और उनके साथ जो सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे हैं, लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि वो सख्ती इतनी बढ़ जाए कि भी बच्चों के ऊपर जुल्म हो। तो ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर एक हमेशा बैलेंस मेंटेन करके चलना। और टाइमिंग्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरह से आप कितना टाइम दे रहे हो, और भी रिस्पॉन्सिबल बच्चों को छोटे छोटे जो आप काम देते होते हैं कि भाई ये कर लो, इवन विथ यंग एज अगर उनको आप कहते हो कि भाई आप सफाई कर लो, झाड़ू कर लो, थोड़ा सा कपड़े धोने में हेल्प कर लो, अपने अपने कपड़े अपना खुद खुद अगर अपना ही वो देख लेते हैं ना, तो ये कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं छोटे छोटे काम करने के आदि। हम देखते थे हम जब स्टूडेंट लाइफ में जब हम पढ़ने गए थे अब्रॉड, वहाँ पर ये कुछ लोग ऐसे आते थे और वो बिल्कुल मम्मी पापा के लड़के, और वो कुछ करना नहीं चाहते, वो आपके ऊपर एक बर्डन बन जाते हैं। आप यू आर यूज्ड टू डूइंग सर्टेन थिंग्स योर वे, लेकिन ये आगे आएंगे और आपको कहेंगे कि भाई आज मैं खाना नहीं पका रहा, वो ये जिस तरह से वो घर में उनको लाड़ प्यार मिलता था वो दूसरों से भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं। लेकिन होता नहीं है वैसे, जो इस तरह से माँ बाप आपको देखते हैं दुनिया में कोई और आपको नहीं देख सकता। और जितने लीनियंट वो हो जाते हैं आपकी तरफ, दूसरे कोई नहीं हो सकते, तो वो लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जाके रंजिशें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑल दैट। या फिर ये कि कुछ जिस तरह से वो घर में होते थे कि मम्मी आएगी सफाई सारा सारा कर देगी, पापा आएंगे तो ये उठा लेंगे वो उठा लेंगे, लाड़ साहब बैठ के पड़े रहेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने फ़ोन के ऊपर। उस तरह का एटीट्यूड अगर आप बाहर, जब ऑब्वियसली आपको जब बाहर जाना है तो फिर आपको लोगों के साथ मेंटेन करना है, उनके साथ घूमना फिरना है, उनके साथ लाइफ गुजारनी है, सब आता है। वहाँ पर जाके मसला हो जाता है कि लेजीनेस, आप सफाई नहीं कर रहे हैं, दूसरा बंदा जो है ना वो सफाई में लगा हुआ है, अपना टाइम दे रहा है, लेकिन आप केयरलेस एटीट्यूड आपका, फिर आपसे कुछ कहते हैं तो आप उसी तरह से करने जाते हो, नहीं नहीं छोड़ो नहीं करूँगा, जैसे आप पेरेंट्स के साथ जिद करते हैं ना। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर योर चिल्ड्रन अप फ्रंट, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डालें कि वो किस तरह कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करें। या अगर आप एटीएम अगर आप जा रहे हैं तो भाई मोस्टली पेरेंट जल्दी जल्दी खुद कार्ड डाल कर पैसे निकाल कर उनके हाथ में दे देते हैं, नहीं ऐसा मत करो आप, लेट देम लर्न। उनके हाथ में एटीएम कार्ड दो और बोलो कि आप एटीएम आप निकालो पैसे, आई वांट यू टू डू इट। थोड़े से शुरू में मिस्टेक्स करेंगे लेकिन दे विल लर्न हाउ टू डू इट। सो बाय द टाइम लाइफ इज लिमिटेड, यू नेवर नो कि आप कितना, हो सकता है कि आप कल हो या ना हो, फिर ये कि बच्चे को कोई और लेकिन किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़े, तो फुल ही रेडी होना चाहिए। बैलेंस हमेशा मेंटेन करना चाहिए अगेन एंड अगेन। मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि भाई आप हमेशा पैनिक में ज़िंदगी गुजारेंगे, कल मैं ना हूँ, या फिर बच्चे को कहीं बाहर जाना है तो फिर वो कैसे करेगा और आप पैनिक मोड में आ गए हैं और सख्ती बढ़ाई जा रहे हैं। ओके, नो वरीज, मैं समझ सकता हूँ आपके कुछ वैसे फ़ोन में प्रॉब्लम है शाह साहब, मैं आप देख रहा था प्रॉपर बात, आपकी म्यूट नहीं हट रहा था, तो इट्स ओके, आप फिर से एक बार कनेक्ट होने की कोशिश करें, शायद हो सकता है कि वो जुड़ जाए। तो अभी मैं ये कि भाई शो कर रहे हैं और मुझे सारे फ्रेंड्स गिर गए हैं, तो फिर मैं खुद ही बात किए जा रहा हूँ ताकि ये जो सेशन हमने किया हुआ पेरेंटिंग का फिर शायद ना हो। तो जितना हम उस बारे में बोल सकते हैं, जो मेरे एहसास हैं, जो मेरे ख्यालात हैं, मैं धड़ाधड़ बोले जा रहा हूँ आपके सामने। और अगर कोई बात अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है तो माजरत, लेकिन बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जस्ट एट द सेम टाइम किड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ना वो समझे अपने माँ बाप को कि उनका जो एरा था, उनका जो टाइम था वो अलग था। तो वो अगर आपकी तरफ कुछ अगर बातें रखते हैं या आपके सामने कुछ टास्क रखते हैं या आपकी तरफ उनका कुछ और व्यवहार है, तो आपको समझना चाहिए, यू हैव टू गो बैक एंड सी के व्हाट देयर लाइफ्स वर नॉट इजी बैक देन। इवन दो के मतलब था, अच्छा ज़माना था, हर चीज़ असली असली थी, लेकिन फिर भी चैलेंजेस थे, फिर भी जो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था विद जो ना हार्ड वर्क एंड ऑल दैट। अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थी उस ज़माने में। तो ये कि आपको देखना चाहिए कि भाई अगर आपके साथ किसी आदमी का या आपके माँ बाप का व्यवहार किस तरह से है, तो उसका एक बैकग्राउंड होता है कि व्हाट दे हैड टू गो थ्रू, कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या, वो हिसाब से भी आप जो ना उनको अगर जज करते हैं ना बच्चे लोग, तो फिर और अगेन द अदर एंड, आई मीन देयर इज नथिंग इम्पोर्टेंट देन योर पेरेंट्स, तो जस्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम बिफोर इट्स टू लेट, डू व्हाटएवर यू कैन। आई मीन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पैर दबाते बैठे एंड ऑल दैट, बट जो भी आपकी कैपेसिटी में आप जो भी कर सकते हैं वो आप अगर कर लेते हैं, तो फिर ये कि चलो आपने अपनी ड्यूटी निभाई है। और एक ये हर कोई अगर अपने अपने पेरेंट्स को देख लेता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो फिर ये कि दूसरे और हर कोई इस तरह से करता है तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहती।
तो यंग जनरेशन को मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगा कि यस, ये पेरेंट्स आर देयर, बट अगेन डू नॉट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स ऑल द टाइम। आप अपने तरफ से भी खुद कुछ रिसर्च करते रहें। इवन दो कंप्यूटर के ऊपर, गूगल के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वोकैबुलरी वर्ड्स मिल जाते हैं, डिक्शनरी मिल जाती है, बट दे नीड टू सी द ट्रेडिशनल वे कि अगर आपको लाइब्रेरी जाकर आपको रिसर्च करना है, जहाँ तक हो सके अपने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है इन रॉ टर्म्स। होता ये था कि पहले जब लोग अकाउंटिंग करते थे या मैथ्स करते थे तो वो बड़े बड़े कैलकुलेशंस बिल्कुल एक उनको इस तरह से सिखाया जाता था कि एक लाइन में करके वो कर देते थे। उनकी प्रैक्टिस होती थी कि बड़े बड़ा कैलकुलेशंस, इवन बैलेंस शीट्स एंड ट्रायल बैलेंसेस, दे यूज्ड टू डू इट ऑन कैलकुलेटर्स तो थे नहीं, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट हो गए थे अपने काम में कि फिर वो ज़िंदगी भर उनको काम आता था। वो पहाड़ अच्छी तरह से याद किए हुए होते थे उन्होंने, टेबल जिससे कहते हैं। और लेकिन ये कि फिर अब जब से कैलकुलेटर आ गया है, अगर आपके सामने 4 नंबर अगर रखते हैं तो फिर आप उसको हाथ से नहीं गिन सकते या आप अपने जहन में नहीं गिन सकते, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपने वो कैलकुलेटर नहीं चाहिए होता है, तो आप इतने डिपेंडेंट हो गए। कहीं आप जाते हैं जहाँ पर कैलकुलेटर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप सोचने बैठ जाते हैं कि भाई किस तरह से किया जाता है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने देखना है कि भाई आप जो ट्रेडिशनल वेज है ना, वो हमेशा बच्चों को सिखाना चाहिए एज अ टीचर एंड ऑल दैट। अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो फ़ोन के अंदर भी कैलकुलेटर आ गया है, बट अगेन जस्ट इमेजिन द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन दैट विच यू वुड हैव बीन यूजिंग in the absence of all these new technologies. What would you do if you were to be stranded in jungle somewhere like a castaway? Then you would need to know the basics. वो कास्टअवे मूवी के अंदर बड़ा अच्छी बात मुझे ये लगी थी ना कि द एक्साइटमेंट द टॉम हैंक्स हैड जब वो चिंगारी से पत्थर को मार मार के जो है में जो आग लगा देता है ना, तो फिर वो लुक व्हाट आई हैव क्रिएटेड द फीलिंग कि मैंने, हालांकि वो कोई बड़ी बात तो है नहीं, सबको पता है कि जब आप दो पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी आती है, लेकिन वो खुद अपने से एक्सपीरियंस करता है तब जाकर वो जो आग लगती है, एंड ही एंजॉयज अ लॉट। तो ये चीज़ें हैं कि भाई बेसिक जो सिखाए जाते हैं। अभी भी ये कि बच्चों को कैंप्स में लेकर जाते हैं स्कूल्स में, तो पहले होता ये था कि पेरेंट्स अक्सर ना वो डरे होते थे अपने बच्चों को भेजने के लिए, पता नहीं हमारे बच्चे कैसे उनको टीचर्स देखेंगे या नहीं देखेंगे, कोई इंसिडेंट हो जाएगा, ऐसे डरते बहुत हैं। तो ऐसे जो कैंप्स होते हैं उसके अंदर बच्चों को भेजना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं उनको, किस तरह से माँ बाप से अलग रहना है, पेरेंट्स से, अपने घर के सुकून से अलग रहना है, किस तरह से आपने अपना बेड बनाना है, किस तरह से आपको घुमाएंगे फिराएंगे ले जाएंगे, एक अलग एक्सपोजर होता है। तो ऐसे कैंप्स के अंदर जब जाते हैं तो फिर उनको छोड़ना चाहिए। एंड अगेन पेरेंट्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि when it comes to children, tell me who your friends are and I'll tell you who you are, कि वो किस तरह के लोगों में हैंग अराउंड कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और पेरेंट्स को इसकी बड़ी ख्याल रखना चाहिए कि आपके बच्चे किस तरह के लोगों के साथ घूम फिर रहे हैं। कि बचपन में अगर बच्चे अगर देखते हैं कि उनके दोस्त अब आप सिगरेट पीने लगे हैं, धूम्रपान, ये गुटखा, ये बहुत सारी चीज़ों में, तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ फिरने के लिए ना उनको अवॉइड करना चाहिए, या फिर ये कि वो जो बच्चों के साथ फिर रहे हैं उनके साथ बातचीत करके वो उनका इश्यूज जो है ना वो रिजॉल्व करें। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक रिचेस्ट सबसे अमीर आदमी वो होता है जिसके बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन तो ये दोस्तों से महरूम ना रहे बच्चा, वरना फिर भी वो भी अब नॉर्मल हो जाते हैं। आजकल तो ऐसे सिलसिला चल रहा है कि लोग ऑनलाइन इतने हो गए हैं कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप ही फ्रेंडशिप हो गई है, तो वो जो पर्सनल टचेस थे विद फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें अभी डिक्लाइन होती जा रही। तो ये है कि आप कोशिश ये करना है कि हाँ आपके बच्चे जो है ना वो प्रॉपर, जिस तरह से हम पेड़ पर चढ़ जाया करते थे, कबड्डी खेलते थे, छिनम छानी, खो खो, निंगोरचा, जो जो सारे हम गेम खेलते थे ना, वो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो बच्चा अपने कजन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो सारी चीज़ एक्टिविटीज़ करे जो हमने किया हुआ है, क्योंकि दैट इज़ देयर फॉर अ रीज़न। बैठ कर ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर बैठे रहेंगे तो फिर वो जो प्रॉब्लम्स उनको बुढ़ापे में आने होते हैं लोगों को, वो बचपने में आना शुरू हो जाएंगे। एंड अभी आपको रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उससे आपको पता चल रहा है कि किस तरह से बच्चे जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल, छोटे छोटे यंग बच्चों में, 19-20 साल 18 साल के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। इस सारे का रीज़न है कि सिटिंग किल्स यू। मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड बी सिटिंग ऑन द कंप्यूटर और डूइंग थिंग्स। छोटे छोटे बच्चों को ऐनकें लग रही हैं। तो ये कि आप टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी ये कि एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि there is a balance. I can't stress not too much on this subject, but you have to maintain a balance and timings होना चाहिए कि भाई इतना टाइमिंग है। फ़ोन के ऊपर आप फ़ोन से, आजकल फ़ोन है ना उसमें ये कि आप वॉच टाइम होता है, वो आपको लगाना है कि ये टाइम से लेके ये टाइम तक, उसके बाद में आप कुछ हो जाए फ़ोन का हाथ नहीं लगाना।
टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। किड्स नीड फ़ोन जस्ट बिकॉज बच्चे बिगड़ जाएंगे इसके लिए आप उनको फ़ोन नहीं देते, ये नाइंसाफ़ी है। तो उनको तो फ़ोन चाहिए क्योंकि वो आजकल की ज़रूरत है। आप पहले के हिसाब से क्यों देख रहे हो, किसी दोस्त के घर जाना होता, किसी के पास जाना होता तो रैंडमली हम उनके पास पहुंच जाते, खटका मारती, उम्मीद करते हुए घर में है। लेकिन आजकल तो बैड मैनर्स माना जाता है। तो आपको किसी से अगर जाके मिलना है तो आपने पहले फ़ोन करना है और अपॉइंटमेंट सेट करना है, फिर जाकर उनसे मिलना है आपको। तो ये अभी तरीक़ाकार हो गया है और आप बड़ा लोग खुले कहते हैं कि भाई ये टाइम पे मेरे से मिलने के लिए ये लोग आते हैं तो वेट करते बैठे होते थे। अब में ऐसे नहीं है कि उनको पता है कि वो बंदा अगर आएगा तो फ़ोन करके आएगा, तो फिर वो आसानी से अपना काम। टेक्नोलॉजी के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन ये कि एट द सेम टाइम you have to make sure कि you're maintaining a balance. Now with regards to आरबी जी, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ शारिक भाई, आप कैसे हैं? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं और आपका हम खुशामदीद करते हैं। थैंक यू सर, आपको बहुत मिस करता हूँ। मैंने आपकी जो एक वीडियो आपने अपलोड की थी, मैंने नीचे लिखा था, शारिक भाई आई मिस यू टू मच। सर हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। आप बड़े नॉलेजेबल इंसान हैं, बहुत नॉलेज है आपको, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। हर जगह हम आपकी तारीफ़ करते हैं जब भी आपका जिक्र निकलता है। और ये तारीफ़ इसलिए नहीं करते कि हमें करनी चाहिए, इसलिए करते हैं क्योंकि आप डिज़र्व करते हो सर। ये आपकी ग्रेटनेस है सर। सर मैं ना बस 1 मिनट में निकलना है मुझे, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है मुझे। तो शारिक भाई ऐसा है कि जैसे ये जो है ना अपना टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, तो अगर हम क्रिएटिव नहीं बनेंगे ना तो हमें फिर सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है तो जॉब्स तो कम होती जाएंगी। तो अगर हम क्रिएटिव बनते हैं तो फिर हम अपने आप खुद को सरवाइव कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और कुछ ना कुछ अगर क्रिएटिव बनेंगे तो कुछ ना कुछ सोसाइटी को भी दे पाएंगे, एनवायरनमेंट भी अच्छा कर पाएंगे। तो अगर क्रिएटिव नहीं बनेंगे तो फिर बहुत बुरी हालत होगी जी। तो ये क्रिएटिव बनने के लिए क्या करना चाहिए? सर क्रिएटिव बनने के लिए सबसे पहले तो आपको हर बंदे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ये हर अलग अलग फील्ड में होता है, उसे प्रॉपरली उसे स्टडी करना पड़ेगा हर चीज़ को। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि टेक्नोलॉजी ने अगर हमें कंफर्ट लेवल जो हमारा बड़ा हाई है आज की डेट में, वो अगर टेक्नोलॉजी ने दिया है तो फिर उसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। और अगर हम इसे थॉरोली स्टडी नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, अपना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझेंगे, वर्ल्ड को नहीं समझेंगे, तो हम क्रिएटिव नहीं बन पाएंगे। जो आज की डिमांड है, जो आज की रिक्वायरमेंट है, इसे समझने की ज़रूरत है। आरवी जी देखिए कि जब आपके पास वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिएटिविटी आने के लिए आपको एक एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए होता है। मसलन ये कि भाई कोई चीज़ करने के तरीके होते हैं, तो ये कि एक तरीका होता है जो आसान होता है, एक मुश्किल होता है, लेकिन देर आर अदर वेज। तो वो आप अगर क्रिटिकल थिंकिंग लगा के सोचते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग होती है आपकी कि भाई गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड डू इट लिटिल बिट डिफरेंट। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से थोड़ा सा क्रिएटिविटी में हेल्प हो जाती होगी। आप क्या जी समझते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है जो अब तक हमने बात नहीं किया था, कि ये जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अडेप्टेशन होते होता है, जो चीज़ें पहले ये कि एक आसानी से हो जाती थी, अब वो मुश्किल हो गई है। उसके लिए कि जो बच्चा या क्रिएटिव नहीं होता तो फिर उसके लिए वो अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने डिस्कस किया। और आप कैसे हैं? आप सब ठीक ठाक हैं घर पे सब? सर 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज़, 1 मिनट। जी बिल्कुल। शाहरुख भाई प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना पड़ेगा, तो वो अभी कॉल आई है, तो मैं ठीक फिर है सर, आता हूँ दोबारा। अगर बिल्कुल, जल्दी बहुत आगे बहुत आपका शो चलता हो तो मैं ज्वाइन करूँगा। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया सर, हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सर। हाँ दोस्तों, तो ये जनाब आरबी साहब थे। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी दिनों से इनसे हमारे ताल्लुकात हैं। कभी अक्सर हम इनको सुनते होते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
वास्ट एक्सपीरियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, काफ़ी सालों से थाईलैंड और दूसरे दीगर ममालिक में फिरते होते हैं बिज़नेस के सिलसिले में। इनका एक्सपोर्ट का बिज़नेस है और ये इनका खुद का एक चैनल चलाते हैं जिसका नाम है डिस्कशन विद आरबी सिंह। अक्सर चैनल पे होते हैं शाम के वक्त के ऊपर, और वहाँ पर काफ़ी मालूमाती बातें वो करते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे लोग इनके साथ जुड़े होते हैं जो अपना इनपुट देते हैं। कुछ तो डॉक्टर्स हैं और कुछ लोग हिस्टोरियंस हैं, इंग्लिश लिटरेचर, दूसरे लिटरेचर से, तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग इनके साथ जुड़े होते हैं। तो ये कि हम कभी कभार सुन लेते हैं इनकी जब कोई एजुकेशनल इनकी स्ट्रीम होती है। तो ये यहाँ पर आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका हमको ये एजाज़ देने का। तो दोस्तों आज हमने बात की है, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की है, मोस्टली पेरेंटिंग के ऊपर जो हमने डिस्कस किया है। काफ़ी टाइम उस पर गुजारा है। शुरू में मैंने आज एक नई सीरीज़ शुरू की है कि भाई न्यूज़ अपडेट्स जो भी मुझे पता है मैं अपने स्टाइल में पढ़ता हूँ और फिर उसके ऊपर छोटा मोटा जहाँ पर तबसरा कर सकते हैं वहाँ कर सकता हूँ। लेकिन ये कि मैं आई एम ओपन फॉर सजेशंस। आप मुझे बताएं कि क्या ये सही है। आपको आप कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हैं कि भाई जिस तरह से मैं कर रहा हूँ या थोड़ा सा एक्सेंट में चेंज होनी चाहिए, या ये क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर्स तो सारे हैं, लेकिन ये मेरी अपनी हॉबी है। इस तरह से मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, वरना ये कि मैं बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड हो जाता हूँ, स्पेशली विद व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ में बहुत ही केयरलेस हो जाता हूँ। लेकिन जब मैंने ये सोचा है कि मैं यहाँ पर आपके सामने बात करूँगा तो मैं खुद अपने आप को थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो मैं जो करंट जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर अप टू डेट रख रहा हूँ अपने आप को। तो ये मेरा एक एफर्ट है। दिस इज़ समथिंग दैट आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड एंजॉइंग इट। अगर आपको पसंद आता है तो बताएं, या नहीं तो फिर इसमें कोई चेंजेस लाना है या कुछ और तरीके से करना है तो हम वेलकम फॉर सजेशंस। एंड ऑलवेज आई वेलकम व्हेन समवन आपको सजेशन देता है, उससे ये है कि भाई वो आपको केयर करता है, इसीलिए आपके बारे में आपके सामने एक बात रख रहा होता है। तो दोस्तों बहुत देर हमने बात किया है। आज के मैंने टाइटल में ये भी रखा था कि हम कुछ संगीत करेंगे ऐसे वैसे, लेकिन ये कि जो संगीतकार हैं जनाब राज साहब वो ड्रॉप हो गए, पता नहीं शायद मसरूफ़ हो गए, और जनाब शाह साहब भी आए थे वो भी मसरूफ़ हो गए, और अजीम साहब को भी मैंने मैसेज किया था लेकिन शायद वो उनके टाइमिंग्स पे एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि हम बहुत हद तक हमने बात की है। जो हमारे दिलो दिमाग में पॉइंट्स थे हमने आपके समक्ष रखे हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, और या तो फिर अपना ईमेल या अपना व्हाट्सएप जो भी है उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर हम आपसे मज़ीद बात करेंगे। बताएं कि दीगर आगे चल के आपको किस तरह के स्ट्रीम्स चाहिए, किस तरह के स्ट्रीम्स आप पसंद करेंगे। दूसरे दीगर बहुत सारे सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। मैं तो वहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। मुझे ये यूट्यूब का जो ग्लैमर है वो पसंद आता है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी बात करता हूँ, चेहरे से बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और आई एम एंजॉइंग इट। देयर आर अदर कपल ऑफ अदर स्ट्रीम्स एज वेल। लेकिन छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि द कर्नवल शो के जो होस्ट हैं बानी हैं वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। काफ़ी वक्त हम उनके चैनल पर गुजारते हैं। उनका चैनल बंद हो गया है अभी किसी रीज़न से, तो वो दूसरा एक उन्होंने द कर्नवल शो नाम से ही एक स्ट्रीम शुरू किया हुआ है। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल दोस्त आ जाते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अभी 1 घंटा 18 मिनट हो गए हमने, मैं समझता हूँ काफ़ी बात की है इस संबंध में। तो अभी मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कि मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, फिर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमने स्ट्रीम रखा है वो हेल्पफुल रहा होगा, और इस दुआ से कि भी आप लोग सब खुश और खुर्रम रहें, सेहतयाब रहें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद दोस्तों। मैं अपना ब्रॉडकास्ट एंड कर रहा हूँ।